Because photosynthesis mechanism, this is the second largest event occurring. Glucose represent as a 3-element compound, and this CO2 2-element compound, H2O 2-element compound, and these simple compounds resulted in the form of complex compound. Hence, this तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ है कहाँ नहीं है। Hello, good afternoon everybody. Today I am going to tell you the information in regard of photosynthesis. Already you people know that, अब सब लोगों को ये पता है कि ये चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस का वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है and that belongs to the plant physiology section. So see here, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। this physiology, already you people know that this physiology means one of the discipline of biology that had been concerned with the different aspects of life processes, or the discipline of biology that deals with the study of vital processes or the life processes that occurs in the body of either plant or animal, that referred out term as a physiology. So the physiological aspects are there whenever the life processes or the vital functions occurs or takes place inside the plant body, then that concerned with the plant physiology, and whenever the life processes or the vital functions occurs in the body of animals, then that is the case of animal physiology. So already you people know that this physiology means this is the discipline concerned with the life processes, you can say the vital functions of body, So आप लोगों को ये पता है सबको कि ये जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है तो इसमें लाइफ प्रोसेसेस का स्टडी होता है, वाइटल फंक्शंस का स्टडी होता है। जो बॉडी है चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, तो उसमें कुछ लाइफ प्रोसेसेस रहते हैं और कुछ वाइटल फंक्शंस रहते हैं। विदाउट दैट फंक्शन और विदाउट दैट लाइफ प्रोसेस लाइफ डज नॉट सर्वाइव। तो ऐसे जो लाइफ प्रोसेसेस है इसका स्टडी जिस डिसिप्लिन में बायोलॉजी के किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। अगर वो लाइफ प्रोसेस प्लांट बॉडी से रिलेटेड है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, अगर वो लाइफ प्रोसेस एनिमल बॉडी से कंसर्न है और रिलेटेड है दैट इज द एनिमल फिजियोलॉजी। आई एम गोइंग टू इलुसिडेट द one chapter that belongs to the plant physiology section, which one is the most important chapter concerned with the CBSE board students, as well as the NEET aspirants, So this chapter had a special significance in regard of these two things. So see here, chapter 13, the title is photosynthesis. So name itself indicate the meaning. Photo means light, specifically sunlight. And this sunlight had been responsible for the production of food. And that is the photosynthesis. आप सब लोग जानते हैं 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड से कि ये जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है, दिस मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट व्हाट हैपन्स in plant body, synthesis of food occurs or takes place, and that is the photosynthesis. So you people have, तो आप लोगों के लिए ये जो चैप्टर है इसका टाइटल ऐसा है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, higher plants. Photosynthesis in lower plants is also there, लेकिन वो इस सिलेबस में नहीं है. फोटोसिंथेसिस इन लोअर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस यू हैव कंसर्न विद द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स.
तो ये सब लोगों को पता है कि ये फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, दैट डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. सो आई एम द मैकेनिज्म ऑफ photosynthesis, the mechanism of photosynthesis, that is divided into the two parts. One is the mechanism of light reactions, mechanism of light reactions, and another part, that is the mechanism of dark reactions, mechanism of dark reactions. This mechanism of light reaction is also known as the primary processes of photosynthesis, primary processes of photosynthesis. And when you say the primary process of photosynthesis for the mechanism of light reaction, at that time you have to say for this the secondary processes of photosynthesis, secondary processes of photosynthesis, as like this. Again, this mechanism, primary processes, totally depend on the availability of light, whereas this mechanism does not depend on the availability of light directly, does not depend on the availability of light directly, and hence these chemical reactions referred out term as photochemical phase, photochemical phase of photosynthesis, photochemical phase of photosynthesis. When you say the photochemical phase of photosynthesis for these primary processes, at that time this mechanism that occurs or takes place inside the live cell, chemical reactions without direct use of the light, hence this referred out term as a biochemical phase, biochemical phase of photosynthesis, biochemical phase of photosynthesis. So the mechanism of photosynthesis is divided into two parts, as like this. And here already you people know that the central idea of this chapter is that when photosynthesis occurs or takes place, at that time CO2 can get reduced with the help of splitted water molecules, with the help of splitted water molecules, and this happen under the influence of sunlight and the photosynthetic pigments, When CO2 is reduced, then glucose had been formed, and then the metabolic water also produced along with the O2. 6H2O molecules are formed along with the 6O2. So this equation itself is your entire chapter. This equation itself represents as your entire chapter. And to explain or to elucidate this equation, they had provided you the story related to the mechanism of photosynthesis on small scale. तो अभी लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो सेंट्रल आइडिया है ये चैप्टर की, ये इक्वेशन है ये. तो ये जो इक्वेशन है ये प्रूव करना चाहिए. जिस स्टूडेंट लोगों को ये इक्वेशन प्रूव करना आता है, इसका मतलब है कि ये जो पूरा चैप्टर है वो उसको समझ गया, पूरा चैप्टर. Because with the help of this equation they built up the story in your NCERT, and they try to elucidate before of you people. So you have to read NCERT thoroughly and try to get the meaning. With the help of that, it is possible for you to prove this equation. So this is the central idea. This is the main aim of this chapter. Because in this case, what happens? See here, in the introductory part, what type of syllabus they had been given for you, I am going to tell in this today's lecture for you people, and at the same time I am going to tell you the orientation today. So this is the main aim of this chapter, where you have to you try to know the related things of this equation. So see here, this is the glucose molecule. It means later on it turned in the form of starch, and that is stored in the plant body. So this is the food. So this is the production of food. With the help of CO2 and H2O. And then in presence of sunlight and photosynthetic pigment, the food had been formed along with the O2 byproduct. तो आप सब लोगों को ये पता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है, वो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म दैट ऑकर्स और टेक्स प्लेस वेयर इन द लीफ,
in the leaf. It means in the leaves of plant body, mainly in the leaves of plant body. तो आप सब लोगों को ये पता है कि जो प्लांट बॉडी के लीव्स रहते हैं मेनली, तो वो लीव्स में मेसोफिल सेल्स रहते हैं. These leaves possess or having the mesophyll cells, possess or having the mesophyll cells. So already you had been seen the anatomical aspects related to the leaf, and in that anatomical aspect it comes to your eyes that the upper epidermis is there, then the lower epidermis is there, vascular bundle is there, on either side of the vascular bundle mesophyll cells lodged. ये जो mesophyll cells है, these mesophyll cells possess or having the specific bodies, those possess or having the green substances. So that specific body is referred out term as a chloroplast. That referred out term as a chloroplast. So chloroplast is a site for the mechanism of light reaction in higher plants, in case of higher plants. In lower plants, instead of chloroplast, the photosynthetic apparatus in prokaryotes is present. And this photosynthetic apparatus in prokaryotes also referred out term as a chromatophores. So these are the structures those evolved in the lower organisms for the purpose of photosynthesis, And this chloroplast, these are the structures. Already you people know that these are the cell organelles. And the related study is present in the chapter 8, chloroplast. So chloroplast is the site for the mechanism of photosynthesis in case of higher plant. So what happens here? See here, already you people know that in this chloroplast, suppose you have to imagine this is the chloroplast, and this chloroplast possesses or having the certain dark green structures referred out term as a singular is granum and plural grana. Just for example, I am going to tell you the central idea of this chapter. And these dark green structures, those referred out term as a grana. So grana is a site for the mechanism of light reaction. Grana is the site. See here, grana is the site for the mechanism of dark reaction. Grana is the site for the mechanism of light reaction. And here on this side I am writing here stroma is the site for the mechanism of dark reaction. Stroma is a site for the mechanism of dark reactions. So see here, the stroma lamellae are there. Stroma lamellae, these membranous structures, those lodged in between the grana, that referred out term as a stroma lamellae. And the rest of part, for example, this part, that represent as a proteinaceous matrix, that referred out term as a stroma. So stroma is a site for the mechanism of dark reaction, whereas grana is the site for mechanism of light reaction. So what happens inside the grana? These water molecules H2O can get splitted under the influence of sunlight, and this sunlight trapped by the photosynthetic pigments. So you have to remember this photosynthetic pigment responsible for the light harvesting. It means photosynthetic pigment trapped the sunlight energy and made it available for the reaction center in these photosynthetic pigments, and that reaction center is responsible for formation of the ATP molecules. At the same time, the same chlorophyll A molecule provide the energy for splitting of this water. So water is splitted, that is called photooxidation of water. So photooxidation of water is resulted simultaneously in the production of the NADPH. This NADPH also written as NADPH plus proton scientifically NADPH plus proton, or you can say shortly as a NADPH2. In your NCERT they just mention as NADPH. So accordingly you have to remember that. So what happens in the grana? So this is the grana where this type of the biomolecules had been formed. So these biomolecules referred out term as a assimilatory powers. ATP acts as a energy donor, whereas NADPH2 acts as a
hydrogen donor. So both combinedly referred out term as a assimilatory powers. Both combinedly referred out term as a assimilatory powers. Or these assimilatory powers also referred out term as a reducing powers. You can say the reducing powers. And this is happen at the time of mechanism of light reaction. That how happen and why happen, will be see that at the time of discussion of this chapter. Whenever in the next lecture I will explain the entire things related to the syllabi. So this is the short story related to this introduction or the orientation class. So see here, grana is a site for the mechanism of light reaction, and what is the main aim of the mechanism of light reaction? Photolysis of water takes place. For that purpose, both the photo systems, pigment system 1 and pigment system 2, both contribute the photophosphorylation mechanism. As a result, ATP and NADPH2 had been formed. So splitting of water resulted into the production of assimilatory powers, and these assimilatory powers, those utilized for the mechanism of dark reaction. So at the time of mechanism of dark reaction, what happens? CO2 is reduced to form glucose. So here this ATP acts as a energy donor on one side, and simultaneously NADPH2 acts as a hydrogen donor. So CO2 is reduced to form glucose. This glucose represent as a 3-element compound, and this CO2 2-element compound, H2O 2-element compound, and these simple compounds resulted in the form of complex compound. Hence this is chemical assimilation. Here, and this assimilation happen because of these two biomolecules, hence referred out term as a assimilatory powers. So grana is the site, this is the site. Here what happens, in this stroma lamellae, CO2 fixing enzymes are there, and they are responsible for fixation of the CO2. CO2 is transferred to the stroma, where the CO2 is reduced to form glucose. So in stroma, what happens? In stroma, with the help of these assimilatory powers, with the help of CO2 can get reduced to form glucose. CO2 is reduced to form glucose. So in stroma, a series of integrated enzymatic reaction takes place. That referred out term as a Kelvin cycle. So in this way, what happens here? See here, in the grana of the chloroplast, assimilatory powers produced under the influence of sunlight, and sunlight trapped by the photosynthetic pigment. Then in the stroma, these assimilatory powers are utilized, then CO2 is reduced to form glucose. So this is the central idea. of this chapter. Here what happens? For the formation of one glucose molecule, 6 CO2 can get reduced. 6 CO2 molecules can get reduced. Then for that purpose 12 H2O are splitted, and then ATP and NADPH2 are resulted. Again, the nature here what did at the time of photophosphorylation, it means formation of ATP under the influence of sunlight. Here what happens? For the reduction of 6 CO2, 18 ATP molecules are needed. And then the NADPH2, only 12 NADPH2 are needed. So what happens? These two molecules does not needed in equal amount. If suppose अगर ये दोनों मॉलिक्यूल इक्वल अमाउंट में लगते तो क्या होता यहाँ जो है तो एक ही मैकेनिज्म सफिशिएंट होता नेचर को, कौन सा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन. लेकिन क्या हो गया कि इसमें से एक ज़्यादा लग रहा है और एक कम लग रहा है. वन इज नीडेड इन मोर अमाउंट, whereas one is needed in small amount. As a result, what happens? Nature provided two types of the mechanism where inside this grana photophosphorylation occurs or takes place by two ways, that is the cyclic photophosphorylation and the non-cyclic photophosphorylation. Cyclic is responsible only for production of the ATP, and non-cyclic is responsible for the production of both of them. So such type of story is there. Again see here,
the mechanism of photosynthesis which occurs or takes place in case of the lower plants. For example, whenever you imagine the cyanobacteria और blue green algae, तो इसमें देखिए ये बाहर का लेयर है उसका और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, तो इसमें इरेगुलर फोल्डिंग रहती है ऐसे. दिस इज कॉल्ड इन्वेजिनेशन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन. So this invagination of the inner membrane responsible for the creation of such type of thylakoids, such type of these structures, irregular shaped structures referred out term as thylakoids. So the photosynthetic pigments are lodged here. यहाँ गिरे हुए रहते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है यहाँ गिरे हुए रहते हैं. देखिए ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और ये सनलाइट ट्रैप करते हैं, ये सनलाइट ट्रैप. तो ये टाइप का जो अरेंजमेंट है, ये टाइप का अरेंजमेंट, इसको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स. तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में ये अरेंजमेंट है और हाइयर ऑर्गेनिज्म में जो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं उसमें ये टाइप का अरेंजमेंट है. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर. तो ये जो स्टोरी है सब फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दो पार्ट में. और जो दो पार्ट है उसमें, और ये देखिए कि जो सब जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. बिकॉज फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट इवेंट ऑकरिंग ऑन दिस अर्थ. Evaporation of water is the first largest event occurring on this earth, whereas the photosynthesis is the second largest event occurring on this earth. तो ये जो है ये इक्वेशन कैसा बनता है, ये इक्वेशन, और यही इक्वेशन को क्या किया है वो लोगों ने एनसीईआरटी में एक डिटेल स्टोरी बनाई. क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो डिस्कवरी हुआ, ये मैकेनिज्म का जो रिसर्च हुआ, ये कोई एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं, वन स्टेप डिस्कवरी नहीं है. ये बहुत लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसके बाद ये पूरा मैकेनिज्म ख्याल में आ गया है ह्यूमन बीइंग के. तो आज के लिए मैं आपको ये जो है सेंट्रल आइडिया ये देके, अभी जो सिलेबस है, ये जो चैप्टर है इसमें जो सिलेबस है किस टाइप का है, ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए जो स्टोरी बता दी है ये चैप्टर में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ किस टाइप का सिलेबस है. और वही सिलेबस आपको डिटेल में पढ़ना है. वही सिलेबस वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्राइब करूँगा ये चैप्टर पूरा लेक्चर वाइज, उसमें सब सिलेबस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि ये इक्वेशन और ये मैकेनिज्म दोनों टाइप का कैसे होता है. तो देखिए इसमें मैं आपको बोल देता हूँ ये जो सिलेबस है. तो ये जो सिलेबस है ये चैप्टर में, तो इसमें देखिए कि आपको क्या मालूम होना चाहिए. इन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर you must have to know that what is meant by autotrophs. Autotrophs. और ये autotrophs दो टाइप के रहते हैं, photoautotrophs and chemoautotrophs. Chemoautotrophs and the examples of them. Examples of them. इसके बाद आपको you must have to know that ये जो फोटोसिंथेसिस है उसका डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस का, वो मालूम होना चाहिए. और ये डेफिनेशन के साथ साथ आपको इसका जो इक्वेशन है अभी मैंने जो लिखा वो इक्वेशन, उसके बाद व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, इसको रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को, और सिग्निफिकेंस जो है मेन सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो सिग्निफिकेंस है वो मालूम होना चाहिए. सो सच टाइप ऑफ सेटिंग इज देयर इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. इसके बाद व्हाट डू वी नो, या ऐसा टाइटल है व्हाट डू वी नो. ये जो टाइटल है व्हाट डू वी नो, व्हाट डू वी नो, इसके अंदर उसने क्या किया है कि कुछ एक स्टार्च आयोडीन टेस्ट, इससे रिलेटेड स्टार्च आयोडीन टेस्ट है, इससे रिलेटेड एक दो टेस्ट आपको बताए जो कि सिंपल एक्सपेरिमेंट है. अर्ली क्लासेस में आपने पढ़े हो किए. यू पीपल परफॉर्म दैट इन योर अर्ली क्लासेस. इट मीन्स वेन एवर यू लर्न इन द 9th और 10th स्टैंडर्ड, एट दैट टाइम यू माइट हैव बीन डिड दैट. तो वो जो अर्ली क्लासेस में सिंपल एक्सपेरिमेंट है उसमें एक है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है, और दूसरा है ब्लैक पेपर
strip experiment, black paper strip experiment. This is another experiment is there. और एक experiment है वहाँ, that is Moll's half leaf experiment. इस टाइप का सिलेबस सेट किया है एनसीईआरटी ने. दिस टाइप ऑफ सिलेबस दे हैड बीन सेट अप इन दिस अंडर दिस टॉपिक और अंडर दिस आर्टिकल. व्हाट डू वी नो. तो इस रीजन में आपको दे ट्राई टू टेल यू इन दिस अंडर दिस टाइप ऑफ द टाइटल्स दे ट्राई टू टेल यू द स्टार्च is present or not, or whenever starch is present it means the photosynthesis takes place or not there, as like this. यहाँ उसने ये बताने की कोशिश की कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, तो वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ है कहाँ नहीं है, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वहाँ है तो ही सनलाइट ट्रैप होता है, अगर नहीं तो सनलाइट ट्रैप होता नहीं. जहाँ सनलाइट ट्रैप होगा वही स्टार्च बनेगा. सो सच टाइप ऑफ स्टोरी दे ट्राई टू टेल यू इन दिस आर्टिकल. इसके बाद जो है सिलेबस में अर्ली एक्सपेरिमेंट. सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू the mechanism of photosynthesis that does not discovered by a single scientist. Many of the scientists belong to the scientific community. They contributed their role in regard of the discovery of mechanism of photosynthesis. इस हिसाब से कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिसने अर्ली कोई डिस्कवरी किया है उसका कंट्रीब्यूशन याद दिया है, उसको हम बोलते हैं chronological aspects related to the photosynthesis, or you can say the historical account related to the photosynthesis mechanism. तो इसमें तुम देख सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये जोसेफ प्रिस्टिले एक्सपेरिमेंट है, PRIESTL, जोसेफ प्रिस्टिले एक्सपेरिमेंट. ये एक एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें ऑक्सीजन की डिस्कवरी कैसी हुई, ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन है या नहीं उसका पता चलने की. बाद में जॉन इंजन हाउस इसने जो रोल ऑफ लाइट की इसेंशियलिटी, लाइट कैसी इसेंशियल है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके बारे में डिस्कवरी किया. इसके बाद ये जूलियस वैन सैक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट. तो इसने जो आजकल हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं उसको पहले स्पेशल बॉडी कहा था, स्पेशल बॉडी, इसके बारे में डिस्कवरी किया है. इसके बाद इंजलमन, TW इंजलमन, तो इसने ये एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, एक्शन स्पेक्ट्रम with the help of aerobic bacteria. So such type of contribution he had been given. ये जो लोग हैं डिफरेंट, ऐसा अलग अलग टाइप का कंट्रीब्यूशन ये लोगों ने दिया है. एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ वो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वगैरह भी देखना है हमको. आफ्टर दिस एम्पेरिकल इक्वेशन इज देयर, एम्पेरिकल इक्वेशन. सो मॉलिकुलर इक्वेशन तो हमने देखा, वो एम्पेरिकल इक्वेशन इट मीन्स द रेशियो रिलेटेड इक्वेशन है. ये रेशियो रिलेटेड इक्वेशन कि जो ग्लूकोज बनता है CH2O 1:2:1 इस प्रोपोर्शन में कैसे बनता है, इसके बारे में एक इक्वेशन है. ये सब होने के बाद क्या हो गया कि ये जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है ये वैन नाम के जो साइंटिस्ट है उसने स्टडी किया, वैन, और उसको हम बोलते हैं वैन सजेशन. सो वैन नाम के जो साइंटिस्ट है उसने भी कंट्रीब्यूशन दिया. उसने ये बता दिया कि ये ट्वाइस H2A प्लस CO2 that is resulted in the formation of 2A plus CH2O plus H2O. तो ये एक ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन 2, ये 4 हाइड्रोजन हो गए, और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए.
तो ये वैन नील सजेशन ने इधर क्या किया कि ये जो ये है ये, तो ये डिस्कवर नहीं हुआ था, ये जो कंपाउंड है वो डिस्कवर नहीं हुआ। बाद में जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस चेकआउट किया बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, उसमें ये पता चला कि दिस ये मीन्स दैट इज द H2S. So the H2S acts as a hydrogen donor and then CO2 is reduced to form glucose. So this mechanism find out in bacterial photosynthesis where the sulfur is deposited. तो ये जो डिस्कवरी हुई इस टाइप की कि ये जो है अननोन कंपाउंड, वो बाद में बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पता चला कि ये H2S है और ये हाइड्रोजन डोनर रहता है। ये हाइड्रोजन डोनर रहता है तो CO2 का रिडक्शन को ग्लूकोज पता बढ़ाता है। तो इसलिए पहले क्या था कि एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था फोटोसिंथेसिस का, प्रीवियसली पहले एक ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस था। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, O2 बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम CO2 एंड नॉट फ्रॉम H2O, ये टाइप का इक्वेशन था। तो आपको इसमें ये भी पता होना है कि ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सा था, क्या था। यू मस्ट हैव टू नो दैट व्हाट इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट वो रिजेक्ट हो गया आफ्टर द वैन नील सजेशन और वैन नील्स डिस्कवरी। वैन नील्स ने जो डिस्कवरी किया, इसके बाद उसने सजेस्ट किया कि हायर प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें H2O मस्ट बी द हाइड्रोजन डोनर एंड देन CO2 रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। तो इसके बाद वो इक्वेशन बना, मैंने जो पहले इक्वेशन लिखा इसके बाद वो इक्वेशन बना, उसको बोलते हैं हम न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ये अर्ली एक्सपेरिमेंट में आपको ये पता करना है कि ये जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ और जो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस था वो कैसे रिजेक्ट हुआ। तो इस टाइप के इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए जो यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको उसके बारे में रेफरेंस है। सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू मस्ट हैव टू नो। सो ऑलरेडी यू पीपल राइट नाउ नो दैट the photosynthesis occurs or takes place in chloroplast in case of the higher plants, whereas the photosynthesis occurs or takes place in the chromatophores in case of the lower organisms. इसके बाद जो सिलेबस में है वो सिलेबस में पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस की स्टोरी, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसमें वैसे तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्लोरोफिल में अलग अलग टाइप है, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें आप यू हैव ए कंसर्न विद द 2 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके साथ कैरोटिनाइड्स, ब्राउन कलर्ड पिगमेंट्स, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो ये जो 4 पिगमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है फोटोसिंथेसिस में, और वो जो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, वो भी आपको देखना है यहाँ। और वो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या करते हैं, सनलाइट ट्रैप करते हैं। तो वहाँ सनलाइट ट्रैप करने के बाद डिफरेंट कलर्ड वेवलेंथ जो है वेवलेंथ्स, द लाइट विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्ड वेवलेंथ्स। सो दिस लैम्डा वैल्यू डिफर्स एंड हाउ द पिगमेंट्स, वो जो अलग अलग पिगमेंट है वो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को ट्रैप करते हैं, कुछ वेवलेंथ को ट्रैप नहीं करते, उसका जो कुछ भी मैकेनिज्म है वो आपको देखना है यहाँ। इसके बाद ये जो रोल है पिगमेंट का, रोल ऑफ पिगमेंट इन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो देखने के बाद आपको पता चलता है कि उसमें वो जो पिगमेंट्स है उस पिगमेंट्स में ये क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए वो रिएक्शन सेंटर है, और क्लोरोफिल बी कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, इट मीन्स कैरोटीनाइड्स, ये तीनों जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल है। तो प्राइमरी पिगमेंट मॉलिक्यूल, देन एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल, इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, इसको एक्सेसरी क्यों बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ स्टडीज देयर। इसके साथ वही पेज पे आपको एक्शन स्पेक्ट्रम देखना है, उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, और इसके बारे में डिटेल मालूम करना है। इस टाइप की स्टोरी वहाँ दी हुई है। इसके बाद व्हाट इज़ द लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन जो है, व्हाट इज़ द लाइट रिएक्शन जानते समय, वेन एवर यू वॉन्ट टू नो द इन डिटेल्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, तो उस समय आपको मैंने अभी बताया कि जो थाइलेकॉइड लुमेन है, थाइलेकॉइड का लुमेन, उसमें कॉन्टोसोम रहते हैं, कॉन्टोसोम, और वो कॉन्टोसोम में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड
पिगमेंट सिस्टम सेकंड, उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकंड का। तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट क्या है इसका डिटेल, पिगमेंट सिस्टम सेकंड क्या है उसका डिटेल देखना है आपको, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। इसके बाद वहीं पे आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, कोर कॉम्प्लेक्स है, कोर कॉम्प्लेक्स में कौन से मॉलिक्यूल आते क्यों आते, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कौन से मॉलिक्यूल आते क्यों आते, ये सब देखना है आपको। सो हियर अंडर द what is meant by light reaction, mechanism of light reaction, you must have to know that what is meant by photosystem first, photosystem second, where these systems had been lodged in the thylakoid membrane, then what is meant by light harvesting complex, what type of work contributed by this complex, then what is meant by core complex and which molecules concerned with the core complex। इस टाइप की स्टोरी आपको मालूम होना है, पता होना है, इस टाइप के डिटेल। इसी के साथ वहीं पे अब्रीवेट किया है, एनसीईआरटी ने बहुत ये सिलेबस जो है वो अब्रीवेट किया हुआ है। तो उसमें आपको क्या देखना है वो देखिए, इसमें वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मेंशन किया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म ये एक मेन मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में वो जो मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन है हमने देखा है इसके पहले कि रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी एंड NADPH2। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जो है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और इनर्ट फॉस्फेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो वहाँ जो ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड है उसमें जो रिएक्शन सेंटर है वो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से एनर्जाइज्ड होने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन टॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन घूम जाते हैं। दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ ETS। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर मेंबर्स रहते हैं ETS के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉज्ड रहती है वहाँ। और जो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच लॉज्ड इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वेयर द क्वांटोसोम्स आर प्रेजेंट in that electron transport system, the members of the electron transport system, they are responsible for harvesting the energy which come across the electron। तो क्लोरोफिल ए से जो इलेक्ट्रॉन टॉस होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दिखाएगा अक्रॉस द मेंबर्स ऑफ ETS एंड द मेंबर्स ऑफ ETS आर इज देयर अकॉर्डिंग टू देयर रेडॉक्स पोटेंशियल। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वहाँ को इलेक्ट्रॉन जब स्पिन मोशन दिखाता है उस समय वो एनर्जी लॉस करता है। जो एनर्जी लॉस होता है वो एनर्जी हार्वेस्ट होता है ADP इनॉर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनता है, तो उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो आपको ये कंपेयर करना है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन दैट ऑकर्स और टेक्स प्लेस वेयर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट वेयर एट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का भी एक मैकेनिज्म है, वहाँ भी प्रोडक्शन ऑफ ATP होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मैकेनिज्म है, वहाँ भी प्रोडक्शन ऑफ ATP होता है। प्रोडक्शन ऑफ ATP विच ऑकर्स और टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन। And the production of ATP that occurs or takes place inside the mitochondria, that is the mechanism of oxidative phosphorylation। इसको भी आपको यहाँ ध्यान देना है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे नीट में। तो प्रोडक्शन ऑफ ATP यहाँ जो होता है उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो ये फोटोफॉस्फोरिलेशन के दो टाइप वहाँ बताए NCERT ने, एक है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज आल्सो नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज आल्सो नोन एज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, that is responsible only for the production of ATP molecules, whereas the non-cyclic electron transport, that is also known as the non-cyclic photophosphorylation। non-cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation is resulted or that responsible for the production of both ATP and NADPH2। तो ये एक बड़ी स्टोरी है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसको इन डिटेल देखना है, उसको कंपेयर करना है आपको। उसके बाद केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो ये थाइलाकॉइड रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, थाइलाकॉइड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड है, साइटोक्रोम एंजाइम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बिखरी हुई है या स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, वहीं पे एक ATPase कॉम्प्लेक्स रहता है, ATPase कॉम्प्लेक्स। और वो ATPase कॉम्प्लेक्स नाम का जो एंजाइम है वो प्रोटॉन से एनर्जी हार्वेस्ट करता है, प्रोटॉन से एनर्जी हार्वेस्ट करके ADP और इनॉर्गेनिक फॉस्फेट को प्रोवाइड करता है, ADP और इनॉर्गेनिक फॉस्फेट को। और जब ADP और इनॉर्गेनिक फॉस्फेट को जो एनर्जी मिलती है प्रोटॉन से, उससे ATP बनता है, उससे ATP बनता है। ये टाइप का मैकेनिज्म है। उसको प्रोटॉन
पंप मैकेनिज्म भी बोलते हैं और मिटचल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो उसका एक डिटेल स्टडी है। या जो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी हो रहा है ये फोटोफॉस्फोरिलेशन का मैकेनिज्म है, उसको देखना है। इसके बाद ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और टॉपिक है। आफ्टर दिस यू हैव टू मूव फॉर नोइंग द एनसीईआरटी ने बताया वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएस आर यूज्ड। तो आपको अभी पता चला कि एटीपी एंड एनएडीपीएस आर यूज्ड वेयर inside the stroma of chloroplast for what purpose? For CO2 is reduced to form glucose for the purpose of CO2 reduction. इसके बाद the primary acceptor of CO2 देखना है आपको, primary acceptor of CO2, primary acceptor of CO2। तो आप तो अभी समझ गए कि जब ग्रैना में लाइट रिएक्शन होती है तो एटीपी और एनएडीपीएस2 प्रोड्यूस होते हैं और उसका इस्तेमाल होता है, यूज होता है कहाँ? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में पहले फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है। तो इसलिए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 जो अगर आपने देखा तो इसी टॉपिक में आपको ये पता चलेगा कि C3 प्लांट है, C4 प्लांट्स है और CM प्लांट्स है। इसमें से ये टाइप के जो प्लांट्स है इसमें ये रुबिस्को जो है, रुबिस्को तो ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। लेकिन ये दो में पेपकेस जो है, पेपकेस नाम का एंजाइम, ये CO2 एक्सेप्टर है, ये CO2 एक्सेप्टर है। तो आपको प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर देखना है। ये जो एंजाइम है वो दो टाइप की एक्टिविटी दिखाता है। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन एज वेल एज दिस एंजाइम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेशन। ये कार्बोक्सिलेशन जब दिखाएगा तब फूड का सिंथेसिस होगा, लेकिन इसने इंस्टेड ऑफ CO2 अगर O2 को ट्रैप करना स्टार्ट किया, व्हेनेवर रुबिस्को instead of fixing for the CO2 start to fix for the O2, then there another mechanism generated। वहाँ एक दूसरा मैकेनिज्म बनता है जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन एटमॉस्फेरिक एयर में जब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 होता है उसी समय C3 प्लांट जो है, C3 प्लांट में जो रुबिस्को है दैट रिमेन्स फेल्यू टू ट्रैप for the fixation of CO2। At that time this Rubisco start the fixation of O2। उस समय फोटो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है और वो फोटोसिंथेटिक यील्ड को रिड्यूस करता है, वो भी एक मैकेनिज्म आपको देखना है। लेकिन उसके पहले ये अभी इसमें जो आपका सिलेबस है उसमें प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के बाद केल्विन साइकिल दिया। केल्विन साइकिल का मतलब क्या है? वो मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन है। तो उसमें ये इसने CO2 को ट्रैप करने के बाद CO2 इज रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज एंड दिस डज नॉट हैपन इन ए सिंगल स्टेप। या ए सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड एंजाइमेटिक रिएक्शन, उसको देखना है डिटेल में। उसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, बेंसोन केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। C3 पाथवे भी, वहाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो PGA मिलता है वो 3 कार्बन कंपाउंड रहता है, इसलिए C3 पाथवे भी बोलते हैं। तो C3 पाथवे के वजह से जिस प्लांट में फिक्सेशन ऑफ CO2 होके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड मिलता है उसको C3 प्लांट बोलते हैं, और वो C3 प्लांट C3 पाथवे दिखाते हैं, उसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। उसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, तो हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ डिटेल्स कि वो क्या बोलते हैं। इसके बाद C3 पाथवे होने के बाद C4 पाथवे है, C4 पाथवे, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी इन फोटोसिंथेटिक पाथवे। इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म हमने पहले बताया, वो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में जो मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन है दैट इज सेम एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन जो दूसरा पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ डार्क रिएक्शन दैट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और यू कैन से फ्रॉम क्लाइमेटिक जोन्स। तो सभी जो ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर क्लाइमेटिक जोन सभी तरफ सरीके नहीं है, दैट इज नॉट सेम। इसलिए क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड पार्ट है CO2 का रिडक्शन होकर ग्लूकोज बनाना, उसमें डिफरेंस आ गया। तो कुछ प्लांट में ये CO2 फिक्स होकर ग्लूकोज बनता है और रुबिस्को का इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ प्लांट में पेपकेस का इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पेपकेस का इन्वॉल्वमेंट है इसीलिए हम बोलते हैं डाइवर्सिटी इन फोटोसिंथेटिक पाथवे। जो दूसरा टप्पा है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन का, वहाँ वो सेम नहीं है, एवरीवेयर दैट इज नॉट सेम। वैसा होता तो ये टाइप नहीं पड़ते प्लांट के। तो वो पेपकेस नाम का जो एंजाइम है, पेपकेस नाम का एंजाइम, ये CO2 को फिक्स करता है और वहाँ स्टेबल प्रोडक्ट चेंज होता है, PGA के बजाय दूसरा रहता है, इसलिए वहाँ 4 कार्बन कंपाउंड स्टेबल रहता है। इसको C4 पाथवे बोलते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन HH के ये लोगों ने दिया, 3 लोगों ने, इसलिए इसके HH के पाथवे बोलते हैं। ये HH के पाथवे समझते समय you must have to know at the time of knowing the in details of the HHK pathway, you try to know the Crane's anatomy as well as you try to know the C4 plants and you compare the C4 plants with C3 plants like this। इसके भी आगे आप अगर आप लोग जानना चाहते हैं, यहाँ तो डिटेल नहीं दिए उसके, ये
क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है, ये जीरोपोएटिक प्लांट जो है उसमें दिखाई देता है। इसका भी मैकेनिज्म इसका जैसा है, खाली ये पाथवे डे एंड नाइट को डिवाइड हुआ है, डे एंड नाइट को, ये नहीं डिवाइड हुआ है डे और नाइट को। तो इसका भी डिटेल है, उसको बोलते हैं सीएम पाथवे। CO2 फिक्सेशन इससे ही होता है और वो डे एंड नाइट को डिवाइड है सीएम पाथवे। सो दिस टाइप ऑफ सिलेबस दे हैड बीन प्रोवाइडेड फॉर यू पीपल अंडर दिस चैप्टर। इसके बाद ये जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल, इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, लेकिन उसके एनसीईआरटी ने उसको 4 रीजन में सेग्रीगेट किया है। कार्बोक्सिलेशन और फिक्सेशन ऑफ CO2, दूसरा रिडक्शन ऑफ PGA और यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमिलेटिव पावर्स, इसके बाद सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और रीजनरेशन ऑफ द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। तो इसमें 3 पार्ट जो है दिए आपको, एक पार्ट नहीं दिया सिंथेसिस ऑफ फूड का और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज का। और इसमें जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया बहुत सिंपल दिया है, क्योंकि वहाँ एक एंजाइम है, वो ट्रांसकेटोलेज नाम का एंजाइम है, उसको ट्रांसकेटोलेज एक्टिविटी उसको रिड्यूस उसने क्या बोलते हैं उसको कि उसका कंसिडर नहीं किया आप लोगों के सिलेबस के लिए। बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, उसको अब्रीवेट किए करके आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो देखना है और उसी के हिसाब से आपको सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उसको सॉल्व करना है। बहुत बड़ा मैकेनिज्म है वो। इसके बाद जो है आपको ये लास्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, तो जो अलग अलग फैक्टर्स है आपको लोगों को अभी तक पता चला होगा ये कि यहाँ फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, CO2 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन CO2 का, उसमें से लिमिटिंग फैक्टर कौन बिहेव करता है ये देखना है। तो दिस टाइप ऑफ सिलेबस सेटअप बाय देम to explain or elucidate the entire chapter photosynthesis. So accordingly we'll be see the in details in the next class at the time of elucidation of this chapter. So whenever you feel this video nice, then you don't forget to like the video. That can provide a lot energy for me to generate or produce the new videos and make available for you people. अभी दूसरा, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू लिसन मी पीसफुली।